بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع نذیر احتشام، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ انسان کو ایمان کی جو دولت نصیب ہوتی ہے یہ بندے کے اپنے اقتدار و اختیار کی وجہ سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ایمان کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ تقدیر الہی لوح محفوظ میں یہ پختہ ہو چکا، ثابت ہو چکا، وہ ایمان نہیں لائیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اگرچہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ جیسے فرعون، کتنے معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ مانگے دکھائے، اپنے آنکھوں سے انہوں نے مشاہدے کیے، ان کے مال و زر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی اللہ ان کا مال برباد کر دے تو وہ پتھر بن گیا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، لیکن جس وقت وہ غرق ہو رہے تھے، وہ غوطے کھا رہے تھے، اب مرنا یقینی ہو چکا تھا، پھر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہ ہوا۔ آگے ذکر ہو رہا ہے جناب حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا، اور اس سورت کا نام بھی سورہ یونس اسی آیت کی وجہ سے ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کا نام ذکر ہے، اور نام رکھنے میں، انتخاب میں یہی پہلو ہونا چاہیے۔ جب بھی بچوں کے نام رکھے جائیں یا بچیوں کے نام رکھے جائیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان، صحابیات یعنی پاکان امت، مسلمان اور خواتین اسلام کے نام سے نام رکھنے چاہیے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے نام سے بندہ یاد ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں کوئی بھی بستی ایسی نہیں آمنت کے ایمان نہیں فنفع ایمان ہوا، عین عذاب کے آثار دیکھ کر پھر وہ ایمان لائے ہو، پھر اس کے ایمان نے انہیں نفع دیا ہو، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، جن کا تذکرہ مختصراً گزشتہ درس میں کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام آپ اپنی قوم کو ہدایت کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہے، لیکن وہ ایک نہ مانے، بار بار آپ اقرار کرتے رہے بھئی بولو اللہ ایک ہے، اللہ کو عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن جس وقت وہ باز نہ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، میری رسالت کو تسلیم نہیں کرو گے تو عذاب الہی آ جائے گا۔ تو قوم پھر بھی نہ مانے، لیکن جس وقت بادل چھانے لگے انہوں نے آپس میں یہ بات کہہ رکھی تھی کہ اگر ہم بستی میں جب رات جناب یونس علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں نہ گزاریں گے
समझना वो दिन अजाब इलाही का होगा। अब सुबह उठे तो बादल छाने लगे, बिल्कुल शदीद काले शाम। उन्हें देखो भी यूनुस अलैहिस्सलाम को जब देखा गया तो बस्ती में वो मौजूद नहीं थे। अब उन्हें आसार यकीन ही हो गए कि ये अजाब इलाही आने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए हैं हमारी बस्ती। वो काफिर होकर भी जानते थे कि इनकी बरकत से अजाब टला हुआ है, आप बस्ती में ये नहीं रहे तो आप अजाब आकर ही रहेगा। आज का मुसला जो है कितना बेबाक हो चुका है। अगर उसे खौफ खुदा याद कराए कि तो बड़ा नेक आ गया है, बस छड़ परे मैं बड़े बख्शे जाऊंगा, मैंने पता है मैं किया। हर एक का पर्सनल मामला है, यानी वो दीनदारी, अल्लाह का खौफ या कुरान और हदीस को जुटलाने की वबाल की अंजाम से डरना वो नहीं रहा। कहते मौत के बाद देखी जाएगी। मेरे दोस्त कुछ काम जिंदगी में कर ले, सारे बोझ मौत के लिए ना छोड़, क्योंकि मरने के बाद तुझसे और भी हिसाब बड़े लेने अल्लाह ताला ने। कहीं ऐसा ना हो कि तू सारी जिंदगी फिर जहन्नमी बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब का निशाना बन जाए। तो अपने आखिरत के बोझ को कम कर। वो कैसे होगा? ईमान ले आ कामिल तरीके से, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी कर। नाफरमानी से डर, कहीं अल्लाह ताला की अजाब मुकद्दर न बन जाए। अब जिस वक्त उन्होंने ये आसार देखे, दौड़े, अपने बच्चों को सबको निकाला, ताकि बच्चों को माँ से जुदा कर दिया गया। वो अलग चीख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गिर गिरा उनकी कैफियत। माए खौफ खुदा से रोकर तौबा तैब और गिर गिरा रही, और मियाँ बीवी को अलग अलग करके, यानी उस वक्त अपनी जो ख्वाहिशात होती है ना, वो सारी चीजें खत्म करके, मैं मार कर, वो सख्त लिबास खुरदरे पहनकर मैदान में निकल कर सारे गिर गिरा कर यही कहते रहे, या अल्लाह बस तू राजी हो जा, हम तुझ पर भी ईमान ले आए और यूनुस अलैहिस्सलाम पर भी ईमान ले आए। अब ये उनके गिर गिराना, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, अजाब टल गया, और वो सच्चे खुलूस से इन तौबा कर रहे थे, ईमान ले आए। इस आयत मुबारक में कि क्यों नहीं, कि कोई ऐसी बस्ती नहीं कि ईमान लाए ऐन अजाब को देखकर फिर उनके ईमान ने उन्हें नफा दिया हो, ऐसी कोई बस्ती नहीं सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। लम्मा आमनु, जब वो ईमान ले आए, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, तो हमने उनसे दूर कर दिया जिल्लत वाला अजाब दुनिया की जिंदगी में। वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें कुछ मुद्दत बरतने को दी। अब एक अभी पिछले रुकू में जिक्र हुआ कि फिरौन ने ऐन घर होते वक्त का मैं ईमान ले आया, तो उसे कहा गया अब तू ईमान ले आ रहा है, इससे पहले तू नाफरमान था। और यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, वो भी ऐन अजाब को देखते वक्त ही उन्होंने ये, तो इस पर इस इतराज का जवाब देने के अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद ये सवाल भी किया कि आखिर वजह क्या है। एक तरफ फिरौन और फिरौनियों को उनकी तौबा कबूल न हुई, ईमान कबूल न हुआ। जब वो घर हो रहे थे तो कहने रहे थे अल्लाह पर हम ईमान ले आए, मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए, लेकिन उनकी तौबा कबूल न हुई, और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल होगी। वजह क्या है? इस सवाल के जवाब खुद ही देते। दो जवाब दिए। एक तो जवाब ये दिया कि फिरौन अजाब में गर्क हो रहा था, फिर उसने ईमान लाने का ऐलान किया, तो ऐन जब अजाब आ चुका हो फिर बंदा कोई तौबा करे, ईमान ले, उसके काबिल कबूल नहीं। और इधर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अजाब नहीं आया था, अजाब के आसार देखे, अलामात देखी, फौरन जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया। बस्ती में वो मौजूद नहीं थे। उनका सच्चा यकीन ही हो गया कि अब अजाब इलाही आने वाला है।
बचो अभी अभी काट लो, चंद लम्हे हैं। तो उन्होंने उन लम्हात में ही अपने आखिरत भी संवार ली और अजाब इलाही से बचने का सामान तैयार किया। पहले अल्लाह के नबी को राजी किया और ढूंढते रहे और माफिया मांगते रहे कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम आप हमें माफ कर दें। और फिर इस एतबार से अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। और दूसरा जवाब देते हैं कि फिरौन को ऐसे कई मौके मिल चुके थे कि मोजज़ात देख चुका था। ऐसे कई मौके मिले कि खुद उसने हक और बातिल के फर्क करने के मामलात मनाजिर कायम किए। लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसे की मौजज़ा दिखाते, फौरन कह देता ये तो जादूगर है माशअल्लाह, और उसने जुठलाया रिसालत को। तो फिर वो उसका कहना ऊपर ऊपर से अब मरना तो था ही, गर्क होना था, तो उसने कह दिया कि मैं ईमान ले आया उस ईमान काबिल। और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, इन्होंने यानी बार बार अजाब को देखकर अल्लाह के नबी को नहीं जुटलाया। जब अजाब के आसार देखे तो फिर सच्चे दिल से इखलास के साथ उन्होंने तौबा की। तो इखलास की कीमत, कद्र कीमत बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए। फरमाया वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीआ, अगर तेरा रब चाहे तो जरूर वो सारे के सारे ईमान ले आए जो कुछ जमीन में रहते हैं, तमाम के तमाम। अल्लाह की मशीयत होती तो सब ईमान ले आते, कोई भी नाफरमान ना होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया की जिंदगी और आखिरत इस सब को इम्तिहान बनाया है। अब वो इख्तियार दिया है बंदे को कि अब बंदा अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करता है या रब ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में जन्नत और दोज़ख बनाई। तो इसलिए रब्बुल आलमीन की ये मशीयत है कि बंदे को इख्तियार दे जो क्या करता है। तो मेरी दी हुई अकल, मेरी दी हुई ताकत, मेरी दी हुई दौलत, इल्म, सोच, शऊर, इसको सही मानों में इस्तेमाल करके मेरा मुझ पर ईमान ले आकर मेरा फर्मा बरदार बनता है या ना फरमान। अगर अल्लाह तेरा रब चाहता तो जरूर वो ईमान ले आते जो जमीन में है, तमाम के तमाम। अफअंत तुक्रिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या आप लोगों को नापसंद समझते हैं यहाँ तक कि वो ईमान ले आए? क्योंकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ये बात बड़ी नागवार गुजरती जब हजूर उन्हें कहते ईमान ले आओ, लेकिन वो ईमान ना लाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए फरमाया ये तो रब की मशीयत नहीं है। अगर रब चाहता तो सबको ईमान ले आते, सब के सब ईमान ले आते। भाई हबीब आप गमगीन न हो, अगर ये ईमान हम नहीं लाएंगे तो खुद ही जिम्मेदार होंगे, खुद ही मुजरिम होंगे। आपके दीन के पैगाम को पहुंचाने में पीछा कर नहीं है। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी नफ्स के लिए ये नहीं है कि वो ईमान ले मगर अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से। वयजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, अलबत्ता अल्लाह ताला अजाब फरमाता है उन लोगों पर जो अकल नहीं रखते, समझ नहीं रखते। कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्द, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि उन्जुरू माज़ा फिस समावाति, देखो तो सही क्या क्या अंजाम हुए आसमानों में और जमीनों में। वमा तुनिल आयात, यानी कितनी निशानियां आई आसमानों में जमीनों में, क्या क्या अल्लाह की कुदरत के नजारे हुए। वमा तुनिल आयात वन नुज़ुरु अन कौमिन ला युमिनून, और निशानियां और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ऐसी कौम को नफा नहीं देते, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते, यानी जो ईमान ही ना लाए उससे ये सारी निशानियां कुदरत की जमीन और आसमान में जो मौजूद है, ये अल्लाह के नबी जितने मौजूदात दिखाएं, जो मानता ही नहीं, ईमान नहीं ले आया, उसे नफा क्या होगा। अगर इन चीजों से नफा हासिल करना है, ईमान से नफा हासिल करना है, तो पहले अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना होगा, अल्लाह पर ईमान यकीन कामिल होगा, फिर कुदरत की निशानियां भी समझ आएंगी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम
سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔